Hello student, this is KK Bhatt here. Once again I am here with the video of poem The Road Not Taken of class 9 Beehive. Dear students, this poem has been written by Robert Frost. Robert Frost is an American poet. He was very famous poet. He was very famous poet of America. He wins many prizes. He also wins 4 Pulitzer prizes. And to get a lot of prize, he became a very renowned poet of America. Dear students, The Road Not Taken. This poem just describes the career of a man. Career, it means, suppose that you are a student. When you passed out of class 10th, you have 4 options as if you want to become doctor, you choose biology. If you want to become engineer, you choose mathematics. If you want to become accountant, you choose commerce. Or otherwise, if you want to become IAS, you choose humanity. So that is the option which we have to choose. Suppose that if any student choose biology, his target is to become a doctor. And finally, on that particular way, he continued his journey. And after intermediate, he attempted NEET examination. If he passed, he completed his MBBS degree. Then after he took MD or MS. In this way, a career which you choose, that is shape his or her future. That is shape his or her future. So as same as if anyone chose mathematics, he become engineer, accountant, and so on. Many. The main thing is that if you go on that way, you never return on the other way. Suppose that you become a doctor, you can't able to become an engineer because you lost your time to become a doctor. The future shape your career as a doctor. If anyone become an engineer, the life also has been save his life. In future could make him as engineer. If you want to become a doctor, not possible. Same here, Robert Frost was describing the importance of our life. And what way we choose, that is shape our future. What way we choose, that is the shape of our future. इस मार्ग पे हम जाते हैं, वही हमारा मार्ग क्या होता है, हमारे फ्यूचर को डिस्क्राइब करता है. For Robert Frost, he chose the literary way. That is why he became a poet, a very famous poet. And through his writing, he became immortal. Every people just known and remember him as a poet. Today, that man is not in this world, but today we are here reading the thought of Robert Frost. That is a very unique profession which you choose. Also, it's very difficult because as you think that money, that is not here complete.
So dear student, I think you understand the theme of this poem. What is the theme of the poem? Is basically the poet described a career. His main motto: how to build your career in literature your in your life. See here, now come on the poem. This well-known poem, well-known means famous poem आप कह सकते हो, is about making choice. यानी this poem is help us to choose the option. It means we have to choose our career, and what the career we have choose, that is shape our future. वो हमारे भविष्य को क्या करता है, आकार देता है. And the choice that shape us, यानी the choice which we have done, that is make our future. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightful. उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से लिखा है, लेकिन आप कह सकते हो इनसाइटफुल मतलब होता है अनुभव के साथ ही, मतलब अनुभव का इस्तेमाल उसने किया है. इनसाइटफुल मतलब होता है अंतर्दृष्टि से उस चीज़ को उन्होंने लिखा है, यानी अंतरात्मा से उन शब्दों को ढूंढ करके उन अनुभवों को लिखा है. अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एंड एक्सपीरियंस, जिसमें जो साधारण है, सामान्य है, और अनुभव जिसमें मिला हुआ है. तो व्हाट यू अंडरस्टैंड हियर? Through this paragraph you understand well what is theme of the lesson. Now see the first paragraph. Two roads diverge in a road, या two roads. अब मान लो कि जैसे जो पोएट है वो जंगल में जा रहा है, कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसके सामने दो मार्ग दिखाई पड़ते हैं. जब दो मार्ग उसे दिखाई पड़ते हैं तो राइटर जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था किस रास्ते से वो जाए. फिर वो काफ़ी देर तक उस रास्तों पे खड़ा रहता है, वहाँ से ऑब्जर्व करता है दोनों रास्तों को. तो दूसरे रास्ते को पता है कि दूसरा जो रास्ता है ये इस पर बहुत कम लोग यात्रा करते हैं, बिकॉज दैट इज़ यूनिक एंड डिफ़िकल्ट. क्योंकि कॉमन पीपल क्या करता है, जिस पे सभी लोग जाते हैं उसी की तरफ वो दौड़ लगाता है, और यूनिक पर्सन जो होता है बिल्कुल यूनिक कैरियर को चूज करता है. तो पोएट भी कह रहा है कि मतलब टू रोड डाइवर्स, आगे वो देखता है. डाइवर्स मीन्स होता है, आप कह सकते हो कि डाइवर्टेड, सेपरेटेड, ठीक है. टू रोड्स डाइवर्ट इन एलो वुड. एलो मतलब होता है पीले, वुड माने जंगल, यानी पिंगले जंगल में जो पोएट है वो यात्रा कर रहा था, और आगे कुछ दूर जाने पर उसको दो रास्ते दिखाई पड़े. अच्छा, अब आपको बता देता हूँ येलो वुड्स क्यों पोएट यूज. येलो का मतलब होता है पीला, यानी आप जानते ही हैं कि जब पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो पीले होकर के ज़मीन पर गिर जाते हैं. उसको इसलिए पतझड़ बोलते हैं, पत्तों का गिरना, ऑटम जिसको आप बोलते हो. तो जब पोएट जंगल में घूम रहा था तो आप समझ सकते हो उस समय जो सीज़न था वो ऑटम सीज़न था, यानी पीले पीले पत्ते सड़कों पर गिरे हुए थे. और उस देखता है कि इस पे बहुत कम लोग यात्रा किए हैं, अर्थात 9 के बराबर यात्रा किए हैं. तो कहता है द टू रोड डाइवर्ज इन ए येलो वुड. दो रास्ते आपस में डिवाइड होते हैं, एक येलो वुड्स में, एक येलो फॉरेस्ट में. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. पोएट ये कह रहा है कि भाई आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, भी ये दोनों रास्तों पे तो नहीं जा सकता. इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रेवल बोथ वे. दोनों रास्ते पे तो भाई वो नहीं जा सकता, उसके सामने समस्या है कि कांट एबल टू ट्रेवल बोथ वे. तो भाई एक इकलौता ट्रेवल है, एक यात्री अकेले है, तो एक यात्री दो रास्तों पे एक बार में नहीं जा सकता ना, उसे दोनों में से कोई एक ही रास्ता चूज करना पड़ता. वही कह रहा है कि सारी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सका. एंड बी वन ट्रेवलर, इसके लीजिए क्या राजन था बेटा, बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला ट्रेवलर था. मैं कैसा यात्री था, अकेला यात्री था.
लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन फार एज आई कुड। लॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय तक वो बेचारा वहीं इंतज़ार करता है। आई स्टूड खड़ा होकर के दोनों रास्तों को बड़ी ही बारीकी से देखता है, अर्थात वो अब थोड़ा अपने करियर के चुनाव करने में थोड़ा सा देरी लेता है। जब कभी भी आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही रहेगा, तो आप क्या करते हो, चिंतन करते हो, सोचते हो, किसी से राय लेते हो। अगर कोई कह दिया भी तो बेटर है कि इस ज़माने में तुम डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि इंजीनियर को कोई पूछने वाला नहीं है, डॉक्टर तो कहीं भी रह के खूब पैसा कमाओगे, खाली एक हाथ चला दोगे, पैसे आते रहेंगे तुम्हारे पास। तो आप क्या सोचते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो। फिर कोई कहता है यार इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर में भी बड़ा नेम पे बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ऑप्शन बहुत है नौकरी के। फिर आप सोचते हो चलो फिर आप सोचने लगते हो यार इंजीनियर बना कि डॉक्टर बना। तो यही वो चीज़ कह रहे हैं कि लॉन्ग आई स्टूड, मोइट कह रहा है कि लंबे समय तक मैं खड़ा रहा है सोचते हुए कि मैं क्या करूं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रास्ते को झुक करके देखता है जितने दूर वो देख सकता है, ठीक है। एंड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर में डेंस फॉरेस्ट। बेंट बने होता है टर्न, जहाँ कुछ दूरी पर जाने के बाद रास्ता घूम जाता है। इन द अंडरग्राउंड यानी डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल की तरफ रास्ता जाके मुड़ जाता है, यानी वहाँ तक उस रास्ते को वो देखता रहता है। आई होप इट इज़ क्लियर फर्स्ट स्टैंजा। नाउ सी हियर द सेकेंड स्टैंजा। देन टुक द अदर, फिर वो क्या करता है दूसरे रास्ते को, लेकिन वो सोच करके पहले रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते का चुनाव करता है। जो पहला रास्ता है जो पहले घुमा हुआ था उस रास्ते को छोड़ करके वो दूसरे रास्ते का चुनाव करता है। एंड देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। फेयर का मतलब होता है बेटा सुंदर होना, गुड होना। ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि पोएट देख रहा है कि जो रास्ता है, दूसरा जो रास्ता है वो उसकी घासें फ्रेश हैं, जो पत्ते हैं वो ब्लैक नहीं हुए हैं, काले नहीं हुए। इसका मतलब ये हुआ कि इस रास्ते पर जाने वालों की संख्या बहुत कम है, यानी वो डिफरेंट कैरियर है। यानी कुछ ऐसे कैरियर होते हैं जिसमें बहुत कम लोग रुझान लेते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरियर होता है। अब हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन, जैसे मान लो आप कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, यू वांट टू बिकम एन IAS, you want to become a draftsman, you want to become doctor, you want to become engineer, so on many. तो among all you have to choose one। तो बहुत सारे कैरियर में से आप किसी एक को चुनना होता है। तो वही कह रहा है कि देन टुक द अदर, दूसरे रास्ते को चुनाव करता है जस्ट एज फेयर, जो बहुत ही सुंदर है। एंड हैविंग परहेज द बेटर क्लेम, और शायद जो दूसरा रास्ता है बेटर क्लेम मतलब होता है अच्छी शिकायत कर रहा है, अर्थात ये बोल रहा है दूसरा रास्ता कि वो जो है वो बेटर है देन फर्स्ट, यानी वो बता रहा है कि जो दूसरा रास्ता है वो कई गुना बेटर है पहले रास्ते से। इसलिए वो कह रहा है बेटर क्लेम, अच्छी शिकायत कर रहे हैं, अर्थात अच्छा दावा ठोक रहा है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, और अच्छा इसलिए था क्योंकि इट वॉज ग्रासी, उसमें जो रास्ते थे बिल्कुल घास उस पर उगे हुए हैं, हरे भरे घास आए हुए हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी एंड वांटेड वियर, मतलब सबसे बड़ी बात है कि रास्ता जो है कैसा है, फुल ऑफ ग्रास, ग्रीनरी ग्रास है, और वांटेड वियर, और उसको देखने से ऐसा लग रहा जैसे कोई इस मार्ग पर गया नहीं हो, कोई इस मार्ग को क्षति न पहुंचाया हो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें उसे महसूस होती हैं। अब देखो बेटा, वांटेड वियर का मतलब यहाँ होता है इक्वली, मतलब समान रूप से, ठीक है। तो ऐसा उसे लगता है कि रास्ता जो है उस पर समान रूप से चलाया जा रहा है। नाउ से इट वॉज ग्रासेड वांटेड वियर तो एज फार दैट द पासिंग डेयर, यद्यपि उस स्थान तक जहाँ कभी उस समय खड़ा था। ऑल्दो एज फार द सेम पासिंग डेयर, मतलब उस स्थान पर जहाँ पोएट खड़ा था, had owned them really about the same. From there he observed and found that both way are equally, जो दोनों रास्ते हैं बिल्कुल एक समान है, लगभग बराबर ही हैं, यानी दोनों। वहाँ फिर पोएट क्या होता है, कंफ्यूज होता है, ठीक है। सुबह जब शाम के बाद सुबह जब आता है
तो वो देखता है कि दोनों रास्तों पे समान रूप से पीले पत्ते गिरे हुए हैं, घासें भी हरी भरी हैं, यानी उसका मन जो ललायित होता है दोनों रास्तों की तरफ। लेकिन भाई एक ट्रेवलर अकेला है तो दोनों रास्तों पे तो यात्रा कर नहीं सकता। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट मैटर फॉर हिम, उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट मैटर है। तो वही कह रहा है कि बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड बियर, क्योंकि ये घास वाला रास्ता था, वांटेड बियर इसका, ठीक है। तो ये समान रूप से दोनों टूटे हुए नहीं थे, दोनों पर लोग कम चले हुए थे, क्योंकि सुबह जो है दोनों पे समान रूप से पत्ते गिरे हुए हैं, पीले रंग के पत्ते गिरे हुए हैं, दोनों की घासें हरी भरी हैं। यद्यप एज फार दैट द पासिंग देयर, वहाँ से गुजरते हुए, हैड ओन देन रियली अबाउट द सेम, मैंने पाया कि वास्तव में दोनों रास्ते एक समान हैं। मतलब यहाँ भी पोएट क्या होता है, पूरी तरह से कंफ्यूज होता है, ही कांट एबल टू टेक राइट डिसीजन। वो कह रहे हैं कि दोनों रास्ते एक समान हैं, तो किस रास्ते को वो चूज करे, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम। हम सबके लाइफ में भी ऐसी चीज़ें आती हैं कि हम चाह के भी चूज नहीं कर पाए। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, ठीक है, इन लिप्स नो स्टेप दैट, दोनों सुबह जो है दोनों रास्ते एक समान दिखते हैं। नो लिप्स, कोई भी जो लिप्स है वो ट्रोडन ब्लैक नहीं हुआ है, पैरों से कुचल काली नहीं हुई है, यानी दोनों स्टेप क्या है उसके लिए बढ़िया है, समान है। ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अदर डे, वो सोचता है कि चलो यार दूसरे मार्ग पर चलते हैं, जो पहला मार्ग है दोनों में से एक ही मार्ग को हमको चूज करना है, जो पहला मार्ग है उस पर किसी और दिन यात्रा कर लेंगे। तो कहता है कि ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अदर डे, दूसरा जो रास्ता है उसको किसी और दिन यात्रा उस पर कर लेगा। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यद्यपि ये जानते हुए कि एक मार्ग दूसरे मार्ग से कितना आगे निकल जाता है, अर्थात आदमी जिस मार्ग पे जाता है उसी मार्ग पे आगे बढ़ते चले जाता है, पीछे जो रास्ते होते हैं वो छूट जाते हैं। आई डाउटेड, मुझे संदेह था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि शायद मैं दोबारा फिर वापस आ सकूँ। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड हियर, द पोएट जस्ट डिस्क्राइबिंग the confusion of the career. We have to confuse to take our careers, we can't able to choose the right way. In this way we have to choose anyone, हमको किसी न किसी को चूज करना ही होगा। and finally the doctor has permitted to choose, ठीक है। तो and he became doctor, as same as the poet also here choose the way of poetry and become a great famous poet. I shall be telling with a sigh, कह रहा है कि मैं एक चैन की सांस लेते हुए बताऊंगा, समय और एजेस एंड एजेस बेटर, हैंस मतलब वो भविष्य में युगों युगों तक लोगों को यह बताता रहेगा, क्या होता है, द रोड हैड टेकन, जो रास्ता आप चूज करते हो वही आपके फ्यूचर को डिस्क्राइब करता है, यानी जिस मार्ग से आप चाहते हो वही मार्ग जो होता है ये बताता है कि आपका फ्यूचर कैसा है। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, कह रहा है कि मैंने देखा है कि दो रास्ते जंगल में एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाते हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, मैंने एक रास्ते को पाया जिसे कोई भी व्यक्ति ट्रेवल नहीं किया है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और वही जो चुनाव हमारा था यानी सेकेंड मार्ग में जाने का, वही जो है हमने दुनिया से हमको संसार से सबसे अलग कर लिया। अर्थात आप पोएट ये कहना चाह रहा है कि उसने उस मार्ग को चुना, उस मार्ग पर चुनने के कारण बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन आ गए उसके करियर में, और वो करियर जो है एज ए पोएट स्पेंड किया। नो डाउट ही बिकम वेरी फेमस पोएट, he became very famous poet. What except this, he continued his journey as a poet. तो what you understand dear student here? तो इस पोएम से आपने क्या समझा कि हमारे जीवन में भी कभी कभी दो रास्ते आते हैं, हम दोनों रास्ते में से किसी एक रास्ते का चुनाव करना पड़ता है। ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन फिर भी हम चुनाव करते हैं, और चुनाव करने के बाद हम जो है ये देखते हैं कि चुनाव करते हुए देखते हैं कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही रहेगा, और जिस मार्ग पे हम जाते हैं वो मार्ग क्या होता है, हमारा फ्यूचर होता है।
जैसे 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 पोएट जो है वो पोएट्री का मार्क्स सुना, ही बिकम वेरी फेमस पोएट एंड विन 4 पुलित्जर प्राइज. As same as we have to choose our career according to our own wisdom. If you want to become an engineer, you must read math. If you want to become a doctor, you must read biology. As so on, many things happen in our life. Okay, I think it is clear to all. Thanks to watch my video once again. I hope you will like and subscribe. Once again, thanks my video.